Hello everyone, welcome back to SSB Crack Exams, and here I am back with a part 2 of the basic questions that usually come in your SSB interview, specifically in your personal interview. तो पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, अभी पार्ट 2 में हम कुछ और क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इन तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको किस तरह के आंसर्स प्रिपेयर करके जाना है. सो लेट अस स्टार्ट विदाउट मच फर्दर अडू विथ the first question for this session. What type of ships does the Navy use? ये Navy aspirants या Navy entry वालों के लिए है, तो आपको पता होना चाहिए about all the types of ships and submarines as well used by Indian Navy, their functions and some of their examples. So you can talk about the types of ships here. I have given you the different types of ships like aircraft carriers, destroyers, frigates, corvettes, submarines and amphibious warfare ships. Okay, should know about them in detail. ऑब्वियसली अगर आप नेवी एंट्री के लिए जा रहे हैं, कमांड्स के बारे में आप क्वेश्चन आ सकता है. हाउ मेनी कमांड्स आर देयर एंड वेयर आर दे सिचुएटेड? सो बेसिकली इंडियन नेवी के 3 ऑपरेशनल कमांड्स है. वेस्टर्न नेवल कमांड इज इन मुंबई, ईस्टर्न नेवल कमांड इज इन विशाखापट्टनम एंड साउदर्न नेवल कमांड इज इन कोची. सो यू शुड नो अबाउट देम एज वेल. आर्टिकल 370 के बारे में पूछा जा सकता है irrespective of whatever entries you are going for, because this is a historical decision which was taken by India. So you should know about it in detail. So basically ये जो आर्टिकल 370 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता था और 5 अगस्त 2019 में इसको एब्रोगेट या रिपील कर दिया गया था, जिसमें JNK लद्दाख यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया. So you could understand Article 370 also. I've given you a chart here. What what this article was about. It guarantees special status to JNK. ये स्टेट असेंबली को अलाउ करता था अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए. एक सेपरेट सेट ऑफ लॉज थे फॉर स्टेट्स रेसिडेंट्स सच एज सिटीजनशिप, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड फंडामेंटल राइट्स. और बाकी स्टेट्स के सिटीजन्स JNK में जो है अपने लैंड परचेज नहीं कर सकते थे या कोई भी प्रॉपर्टी स्टेट में नहीं ले सकते थे. और फाइनेंशियल इमरजेंसी सेंटर जो है वो कभी भी डिक्लेयर नहीं कर सकता था अंडर आर्टिकल 360 इन द स्टेट. ठीक है, तो ये कुछ जो थे आर्टिकल 370 जो है JNK को कुछ लॉज, स्पेशल लॉज दिए थे, स्पेशल ऑटोनॉमी दिए थे, तो इसको रिपील कर दिया गया है. Okay, now if you're specifically a JNK resident, ये question जरूर आ सकता है. So make sure that you are able to answer it in a much more proper and strong way. Okay, जैसे मैंने last time भी कहा था part 1 में मिसाइल के बारे में बहुत कुछ सवाल आ सकते हैं. So they can obviously ask you about another type of missile which is a supersonic missile. Supersonic missile क्या है? जैसे आपको पता है, very importantly BrahMos is a supersonic cruise missile जो कि इंडिया और रशिया मिलकर डेवलप किए थे, और ये शिप, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट और लैंड प्लेटफॉर्म से भी जो है लॉन्च किया जा सकता है. So you should know about cruise missiles and difference between ballistic and cruise missiles. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है. ओके, इंडियाज के फिजिकल फीचर डिस्क्राइब करने के लिए बताया जाएगा. तो ऑब्वियसली आई थिंक यू शुड ऑल नो, एवरीबडी नोज अबाउट इट, दैट हिमालयस इन द नॉर्थ, इंडियन ओशन इन साउथ, थार डेजर्ट इन द west, eastern and western Ghat mountains running along eastern and western coast. ठीक है, so you should know about it. Okay. Now if you're a physics lover or if you're a student of physics, they can ask you about the laws of motion and with some examples, practical daily life examples. So मैंने यहाँ पे कुछ example आपको दिया है. जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि an object will not change its motion unless a force acts on it. For example, there's a book on a table which remains at rest until pushed. Newton's second law says that the force on an object is equal to its mass times its acceleration. For example, a car accelerates faster when push is harder. Newton's third law states when two objects interact, they apply forces to each other of equal magnitude and opposite direction. For example, when you jump off a small boat, the boat moves back as well. Okay, so ये कुछ daily life examples है. ओके, DRDO के बारे में क्वेश्चन आ सकता है. आपको पता होना चाहिए DRDO इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ये एक प्रीमियर एजेंसी है इंडिया के, और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, जिसके पास चार्ज है मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट को कंडक्ट करने का, और इनका जो हेडक्वार्टर है ये दिल्ली में सिचुएटेड है. Okay, they can also ask you about IGMDP. What is it? It's an integrated guided missile development program, जो एक इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रोग्राम है, और ये रिसर्च और कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ मिसाइल्स को डेवलप करने के लिए किया गया था. 1982 से 83 में लॉन्च किया गया था ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसके अंडर हुआ है, जैसे पृथ्वी हुआ है which is a short range surface to surface missile, त्रिशूल हुआ था which is a short range surface to air missile, आकाश हुआ है which is medium range surface to air missile, नाग हुआ है which is third generation anti tank missile, and अग्नि 1 हुआ है. ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए. Also about IGMDP.
ओके, देन रेजिमेंट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इफ यू आर गोइंग फॉर इंडियन आर्मी एनी 5 रेजिमेंट्स, टॉक अबाउट इट। ऑल्सो दे कैन ऑल्सो आस्क यू व्हाट इज योर फेवरेट रेजिमेंट, तो बी एब्सोल्युटली श्योर, जो भी रेजिमेंट आपका फेवरेट होगा उसके बारे में डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे कुछ मैंने रेजिमेंट्स आपके लिए प्रोवाइड किए, जैसे पंजाब रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, राजपुताना राइफल्स, सिख रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री, सो ऑन, और भी रेजिमेंट से आपको देखने को मिल रहा होगा। ओके, ऑल्सो फिजिक्स बेस्ड एक और क्वेश्चन आ सकता है, रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज को एक्सप्लेन करने का, एंड व्हाट इज द रिलेशन। तो यू शुड नो द रिलेशन दैट वोल्टेज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन टू करंट फ्लो। ओम्स लॉ को आप स्टेट कर सकते हो, विच इज V इक्वल टू IR। ओके, ऑल्सो इंडाइजिनसली मेड इक्विपमेंट के नाम पूछा जा सकते हैं। इंडाइजिनसली मेड क्योंकि मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंडर ये हुआ है, तो अर्जुन MBT है, उसमें तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, INS विक्रांत है, आकाश मिसाइल सिस्टम है, और ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। इनके बारे में भी स्पेसिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। DAC क्या है और उनका चेयरपर्सन कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत एस्पिरेंट्स को पता नहीं होता DAC क्या है। नाउ एज अ डिफेंस एस्पिरेंट यू शुड नो दैट DAC इज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो प्रोक्योरमेंट पे काम करता है, और इसका जो चेयरपर्सन है ये हमेशा से डिफेंस मिनिस्टर रहा है। यहाँ पे मैंने एक आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का, ठीक है, क्या क्या रहता है उसमें, कौन से विंग्स रहते हैं, क्या काम होता है, तो ये आप देख सकते हैं। ओके, PSU के कुछ नाम पूछा जा सकता है जो कि डिफेंस प्रोडक्शन में हेल्प करता हो। इट इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि हमारे जितने भी वेपन्स वगैरह बन रहे हैं कौन से PSUs इसमें हेल्प कर रहे हैं। तो बहुत सारे PSUs है, इसमें एक है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BDL है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, और MDL है, मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, तो इनके बारे में भी पता होना चाहिए क्या क्या बनाया है इन लोगों ने भी, मेक श्योर दैट यू नो देम। अच्छा, AWACS के बारे में देखना आस्क यू, दिस इज अ सिस्टम विच इज देयर इन एयरफोर्स, तो अगर आप एयरफोर्स एंट्री वाले में से हो तो AWACS के बारे में पूछा जा सकता है, स्पेसिफिकली पायलट एंट्री वालों के लिए। तो AWACS कुछ भी नहीं, ये एक एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो एक एयरबोर्न रेडर सिस्टम है, टाइप ऑफ एयरबोर्न रेडर सिस्टम, और ये डिजाइन किया गया है एयरक्राफ्ट, शिप्स या कोई भी व्हीकल को लॉन्ग रेंज में डिटेक्ट करने के लिए, और ये कमांड और कंट्रोल कर देते हैं of the battle space in an air emergency by directing fighters and attack aircraft strikes। ठीक है, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, यहाँ पे अगेन ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में पूछा जा सकता है ऑफ इंडिया, जैसे कौन सी कंट्रीज हमारे इंडिया के बॉर्डर के साथ है, शेयर करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट तक आप पूरा ऑर्गेनाइजेशनल वे में बताएं। तो वेस्ट से स्टार्ट करें तो है पाकिस्तान, उसके बाद है अफगानिस्तान, जिसके नॉर्थ वेस्ट में थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ, फिर है चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो वेस्ट टू ईस्ट यू शुड नो। Also water bodies के बारे में they can ask you what water bodies are surrounding Indian subcontinent, so it is Arabian Sea in the west, Indian Ocean in the south and Bay of Bengal in the east। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन, you know that। अच्छा, इंडिया के कोस्ट लाइन में कौन से स्टेट्स है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट they can also ask you to tell you। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट में है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, उसके बाद है कर्नाटका, केरला, उसके बाद है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट टू ईस्ट आपको स्टेट्स के नाम बताने कोस्ट लाइन पे जो लोकेट करता है। इसरो के बारे में क्वेश्चन कैन कम, क्योंकि इसरो भी कभी कभार क्या होता है डिफेंस में बहुत हेल्प किए हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्पेस एजेंसी है, जो बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्ड है, और ये नेशन के स्पेस प्रोग्राम और एप्लीकेशन जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए काम करते हैं। डिफेंस में भी इनका बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, इसरो के सिग्निफिकेंस, ये आ गया, इसरो के सिग्निफिकेंस क्या है एज रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस। तो ये जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, नेविगेशन में थ्रू नेविक सिस्टम, और सर्वेलेंस में। देयरफॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को ये बढ़ाते हैं। अच्छा, गैलेंट्री अवार्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के जितने भी गैलेंट्री अवार्ड्स है बेसिकली इनको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, एक वॉर टाइम में दिया जाता है गैलेंट्री अवार्ड, और एक पीस टाइम में। तो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स आर परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र, और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स में होता है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। ठीक है, तो इन चक्रों के नाम, इन अवार्ड्स के नाम आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, प्राइमरी वेपन इंडियन सोल्जर्स क्या यूज करते हैं, आपको पता है कि पहले इंसास यूज किया जा रहा था, लेकिन अभी उसको बदल के रिप्लेस करके 716 और AK-203 असॉल्ट राइफल्स यूज किया जा रहा है।
ऑनररी रैंक के बारे में पता होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है ऑनररी रैंक क्या है, किसको दिया गया है आज तक इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो बेसिकली जो ऑनररी रैंक्स है ये मार्क ऑफ रिस्पेक्ट के लिए दिया जाता है टू डिस्टिंग्विश पर्सनालिटीज। अभी तक MS धोनी और अभिनव बिंद्रा जो है उनको मिला है आर्म फोर्सेस के तरफ से ऑनररी रैंक्स। ओके, इंडिया के रिवर सोर्सेस के बारे में दे कैन आस्क यू अगेन, फिजिकल फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन है ये। वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बोल के पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर नर्मदा एंड तापी और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी एंड कृष्णा। अच्छा, एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में दे कैन आस्क यू, और आर्म्ड फोर्सेस के साथ कैसे रिलेटेड है, विच इज अ वेरी क्लेवर क्वेश्चन। स्पेसिफिकली साइंस स्टूडेंट्स को पूछा जा सकता है, जो पायलट एंट्री के लिए जा रहे हैं उनसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो यू शुड नो। देखो, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर तो हम लोग कहते हैं, लेकिन आर्म फोर्सेस के साथ कैसे जुड़े रहते हैं ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने आपको आंसर बता दिया है। पहले वहां है स्ट्रोपोस्फियर, ये वेदर फिनोमेना के लिए होता है और ये एविएशन को अफेक्ट करता है। स्ट्रेटोस्फियर, जेट एयरक्राफ्ट ऑफन फ्लाई हियर टू अवॉइड वेदर, ज्यादातर एयरक्राफ्ट यहाँ पे फ्लाई होता है। मेसोस्फियर इज अबाउट मीटियोर बर्निंग और ये बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस के सर्वेलेंस के लिए यूज होता है। थर्मोस्फियर इज यूज फॉर सैटेलाइट ऑर्बिट्स फॉर कम्युनिकेशन एंड रिकॉनेसेंस। और एक्सोस्फियर जो है ये अर्थ एटमोस्फियर का बिल्कुल बाहर आउटर मोस्ट लेयर है जो स्पेस के साथ जुड़ता है और ये हाई ऑल्टीट्यूड सैटेलाइट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। So you could see how relevant they are. ओके, इंडियन आर्म फोर्सेस के स्पेशल फोर्सेस के बारे में पूछा जा सकता है वेरी इंपॉर्टेंटली। सो फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आर्मी के लिए इट इज पैरा SF, फॉर नेवी इट इज मरीन कमांडोज और मार्कोस, और एयरफोर्स के लिए है गरुड़ कमांडो फोर्स। तो अगर आप कोई भी एंट्री के लिए जा रहे हो, मान लीजिए यू गोइंग फॉर नेवी एंट्री, तो आपको मार्कोस के बारे में अच्छे से पता करके जाना पड़ेगा। सो विच एवर एंट्री यू गोइंग फॉर, उनके स्पेशल फोर्सेस के बारे में पता करके जाइएगा, क्योंकि ये जो स्पेशल फोर्सेस है ये काउंटर टेररिज्म, रिकॉनेसेंस और डायरेक्ट एक्शन जैसे स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन के लिए यूज होता है। सो यू शुड ऑल्सो नो विच ऑपरेशंस दे हैव पार्टिसिपेटेड इन, ठीक है, कितने मेडल्स जीते हैं, क्या है ये, कैसे बनते हैं इस पर्टिकुलर फोर्स का, स्पेशल फोर्स का हिस्सा। तो आप ये सब कुछ जो है पता करके जाइएगा। तो आई होप दैट द सेशन हैज बीन क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन लेके मैं जरूर हाजिर हो जाऊंगी आपके अपकमिंग SSB इंटरव्यू के लिए। टिल देन गेट योरसेल्फ एनरोल्ड टू आवर SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स, जिसके थ्रू आपको आपके अपकमिंग SSB के लिए फुल फ्लेजेड गाइडेंस मिलेगा। हमारी इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस भी हर रोज होती हैं, हर मंथ नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। तो फरवरी का जो नया बैच है वो 5 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, उससे पहले आप लोग ज्वाइन हो जाइए। अगर आप कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोर्सेस हमारे ऐप में अवेलेबल है, तो आज ही आपको डाउनलोड कीजिए और फटाफट से कोई भी कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन के वक्त वॉरियर 10 का कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, जिससे 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। So that was it from my side. I will see you very soon. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।